وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محترم سامعین انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس مختصر سے درس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور اور معروف صورت یعنی سورۃ البقرہ سے جو ہے چند احکامات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ تراویح کے اندر جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا ہے یہ اس کے خلاصے کے طور پر جو ہے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن کے معانی مفاہیم بہت زیادہ ہیں، تو چنانچہ اتنے سے مختصر سے درس میں ہم صحیح طور پر ہم جو ہے جناب قرآن مجید فرقان حمید کے صرف جو ہے ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں جو زیادہ اہم ہم جو ہے سمجھیں گے انشاءاللہ وہ چیزیں جو ہیں وہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کے معانی مطالب آپ تک صحیح طور پہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم سید اکرم حبیب کردگار شفیع روز شمار دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہایت عقیدت محبت اور احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی سیدی 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 یا رسول اللہ۔ محترم سامعین، پہلے جو ہے مختصر سا سورہ بقرہ کا میں آپ کے سامنے تعارف پیش کر دوں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد جو ہے یہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کی ساری آیتیں اور ساری صورتیں جو ہیں وہ ایک دم میں نازل نہیں ہوئیں، تو اسی طریقے سے سورہ بقرہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ کی کچھ امتیازی شان یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے طویل صورت ہے۔ سب سے مختصر صورت سورہ کوثر ہے جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اور یہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن کی سب سے طویل صورت ہے، اور اس میں 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ کا کیا معنی ہے؟ تو بقرہ جناب عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس کو جناب سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک واقعہ منسلک ہے جو کہ اسی سورت میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں کسی آدمی کا قتل ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے پھر لوگ حاضر ہوئے کہ جناب ہمیں اس کے قاتل کا پتہ بتا دیجئے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے شرف کلام نصیب فرمایا ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے ان کو یہ حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور جو ہے اس کی زبان نکالو اور اس کو مردے کے اوپر مارو، تو مردہ جو ہے وہ خود بولنے لگے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو چنانچہ اس صورت میں اس سارے واقعے کا ذکر ہے، اور بنو اسرائیل نے کس طرح سے جو ہے اس میں کٹ حجتی کا مظاہرہ کیا، بار بار حضرت موسیٰ سے جو ہے اس گائے کے متعلق پوچھتے رہے، اور معاذ اللہ جو ہے انہوں نے ایک استہزائیہ سا انداز اختیار کیا، وہ سب کا سب جو ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ تو چنانچہ اسی گائے کی نسبت سے جو ہے اس سورت کو سورۃ البقرہ کا نام دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، یہی سورۃ البقرہ ہے کہ جس کے اندر آیت الکرسی بھی ہے،
اور यही सूरतुल बकरा है कि जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयत भी है जो सबसे आखिरी आयत है। सबसे आखिरी आयत का मतलब यह है कि जो सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आखिर में नाजिल की गई। आमतौर पर लोग ये समझते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये वाली आयत जो है वो सबसे आखिर में नाजिल हुई, लेकिन सही यही है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 281 जिसमें अल्लाह करीम फरमाता है वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाहि थुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अल्लाह करीम फरमाता है कि उस दिन से डरो कि जिसमें तुमको अल्लाह करीम की तरफ फेरा जाएगा, लौटाया जाएगा, और फिर हर जान जो कुछ उसने किया है उसको पूरा उसका अजर मिलेगा। वहुम ला युज़लमून, और लोगों के ऊपर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो चनाचे जो है ये आयत जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयत है जो कि सबसे आखिर में जो है वो नाजिल हुई है। मोहतरम सामीन, इस सूरत की बड़ी फजीलतें हैं, और एक फजीलत जो है मैं आपको बताता चलूं। आमतौर पर लोग पूछते भी हैं कि जनाब हमारे घर में जो है वो जिन्नात हैं, हमारे घर में जो है कोई साया है, हमारे घर में आसेब है, तो जनाब उससे जो है हम निजात कैसे हासिल करें। तो सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिजी की, मुस्लिम की और नसई की ये हदीस शरीफ है, बड़ी मारूफ हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, कि अपने घरों को कब्र न बना लो। फ़इन्नल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रती ला यदख़ुलुहु अश-शैतान, क्योंकि वो घर के जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जनाब जब आप पढ़ेंगे तो शैतान यानी बुरे जिन जो हैं वो आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। तो हमें जो ये तरीका जो है बना लेना चाहिए कि हम रोजाना इस सूरतुल बकरा की या हफ्ते में या महीने में जो है इसकी तिलावत करें। एक और चीज जो है, क्योंकि मौजू आ गया है तो इसीलिए मैं अर्ज कर दूं कि आमतौर पर लोग जो हैं वो हमसे ये तो पूछते हैं कि जनाब जो जिन्नात हैं उनसे कैसे बचें, आसिफ घर में आ गए तो उनके साय से कैसे बचें। लेकिन कई गलतियां जो हैं वो खुद भी सर अंजाम देते हैं, यानी अपने हाथों की जो है ये कि कमाई होती है, अपनी खुद की गलतियां होती हैं जिसकी वजह से बास औकात घरों में जिन्नात वगैरह जो है वो बसेरा कर लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं। उसमें से एक ये है कि जनाब घरों में तस्वीरें रखना, तो जी रूह की तस्वीर रखना, किसी जानदार की तस्वीर रखना। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में जो है इस तरफ साफ जो है इशारा फरमाया है कि जिस घर में तस्वीरें हों उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिसमें जुनूब हो उसमें भी जो है वो रहमत के फरिश्ते नहीं होते, जिसमें कुत्ते हों तो उसमें भी जो है वो फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते। तो चनाचे जनाब हर जगह तो हमने जो है एक वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर जगह जगह तस्वीरें लगाई होती हैं। सारे दिन तो हमारे यहाँ टेलीविजन चलता है, टेलीविजन में भी जाहिर तस्वीरें आती हैं। घरों में जो है बच्चों की तस्वीरें इधर उधर जो है हर जगह हमने लगाई होती हैं। तो जनाब जब घरों में आपके तस्वीरें हैं, हर जगह तस्वीरें हैं, रहमत के फरिश्ते आ नहीं रहे तो फिर जाहिर है वहां पर जिन्नात का ही बसेरा होगा। अगर रहमत के फरिश्ते आए, अल्लाह रसूल का जिक्र हो, कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ी जाए, नमाज पढ़ी जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है इन चीज़ों से बड़ी हिफाजत रहती है। फरिश्तों के आने से ही जो है, अल्लाह के जिक्र से ही जो है जनाब ये चीज़ें जो हैं वो घरों से भाग जाया करती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े हमें सूरह बकरा की भी तिलावत करने की शर्फ अता फरमाए, और इसके अलावा जो है तस्वीर से, जानदार की तस्वीर से अपने घरों को पाक रखने का जो है अल्लाह करीम हमें जो है ये फहम अता फरमाए। मोहतरम सामीन, इसी तरीके से इसी सूरत के मुतल्लिक सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल कुरान मजीद फुरकान हमीद को, और जो लोग कि जो कुरान पर अमल करते हैं, कल बरोज़े क़यामत उनको लाया जाएगा। और फिर क्या होगा? सरकार फरमाते हैं तक़द्दमुहुम
सूरतुल बकरा व आल इमरान, कि जनाब क़यामत के रोज कुरान आएगा, नेक लोग आएंगे जो कि कुरान पे अमल करते रहे, और उनकी जो है उनकी रहनुमाई, उनके आगे कौन कौन चल रहा होगा, जनाब सूरतुल बकरा होगी और आल इमरान। आप पूछेंगे मुझसे कि जनाब सूरह बकरा किस तरह से चलेगी और आल इमरान किस तरह से जो चलेगी, तो जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अन्नहुमा गुमामतान, इस तरह से कि गोया के जो हैं वो दो बादल हैं। सूरह बकरा बादल की तरह आएगी और सूरह आल इमरान बादल की तरह आएगी। अल्लाहु अकबर। कल क़यामत में जो उसकी हौलनाकियां होंगी, तपिश होगी, अल्लाहु अकबर। और उस वक्त जो है अल्लाह करीम कुरान को, अहले कुरान को बुलाएगा और जनाब सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो हैं वो बादल की तरह उनको लेकर आएंगी, और ज़ुल्लतानी सऊदावान, या फिर जो है वो बड़ी बड़ी छतरियों की तरह, ब्लैक छतरियों की तरह जो है वो उनके ऊपर होंगी। अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामीन, तो ये जो है जनाब एक मुख्तसर सा तारुफ था सूरतुल बकरा का, जो कि मैंने आपके सामने पेश किया। सूरह बकरा कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इससे शुरू होती है। अलिफ लाम मीम जनाब ये हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की कई सूरतों के शुरू में जो है हुरूफ, जो कि बज़ाहिर जो है लेटर्स लगते हैं, अल्फ़ाबेट्स लगते हैं, हुरूफ लगते हैं, जनाब उनको जो है अल्लाह करीम ने जो है वहां पर रखा है। वो सूरतें उन हुरूफ से शुरू होती हैं, अलिफ लाम मीम, कभी काफ हा या ऐन सौद, कभी अलिफ लाम रा। तो इस तरह से जनाब जो है वो सूरतें शुरू हो रही हैं। इन हुरूफ के मानी क्या हैं? तो मुफस्सिरीन ने जो है इसमें कहा है कि अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिका। वैसे बड़ी जो है तफसीली बहस हुई है कि क्या माने हैं, क्या माने नहीं है, लेकिन फिर आखिर में आके कहते हैं कि अल्लाह जो है ज्यादा जानता है कि इन हुरूफ से अल्लाह तबारक व तआला की क्या मुराद है। उसके बाद अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुतल्लिक़ फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये बुलंद रुतबा किताब, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की जगह नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए यह हिदायत है। इस तरह से जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो है वो शुरुआत होती है सूरह बकरा की, और शुरू में अल्लाह करीम ने सूरह बकरा के 3 तरह के लोग बयान किए हैं। एक मुमिनीन, दूसरे काफिरीन, और तीसरे जनाब मुनाफिकीन। मोमिनीन अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि यही जो है अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही जो है वो कामयाबी पाने वाले हैं। और काफिरों के मुतालिक अल्लाह करीम ने फरमाया कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कि ये जो हैं बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, और आप इनको हिदायत दें, इनको डराएं कि ना डराएं, ये जो है ईमान लाने वाले नहीं। और फिर तीसरी बात जो है अल्लाह करीम ने, यानी ये उन कुफार के मुतालिक कहा है कि जिनके दिलों में कुफ्र जो है बैठा हुआ है। और फिर तीसरी जो है जो अल्लाह करीम ने किस्म बयान फरमाई है, वो फरमाई व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि बाज लोग वो हैं कि जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाए, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए, लेकिन हबीब वो मुमिनीन नहीं है। वो मुमिनीन नहीं है तो फिर कौन है वो? अल्लाह करीम ने जो है आगे यहां पर भी बयान फरमाया है, और सूरह मुनाफिकून में भी बयान फरमाया है कि वो मुनाफिक हैं। वो मुनाफिक हैं। मुनाफिक किसे कहते हैं जनाब? मुनाफिक उसको कहते हैं कि जो बज़ाहिर तो मोमिन बने लेकिन दिल से जो है वो पक्का काफिर, तो उसको जो है मुनाफिक कहते हैं। और सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने शरीफ हिजरत फरमाई तो वहां पर मुनाफिकीन का जो है एक बहुत बड़ा जो है ग्रोह मौजूद था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जो सरकार की ताज़ीम करते थे, सरकार से मोहब्बत करते थे, सरकार के लिए सब कुछ अपना कुर्बान करते थे, अल्लाह अकबर, तो ये जो है कहते थे कि ये लोग जो हैं बड़े बेवकूफ लोग हैं,
लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों पर कि जिन्होंने सरकार के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं किया, सरकार की ताजीम नहीं की, अल्लाह करीम ने उनके मुतल्लिक फरमाया है कि वमा हुम बिमुमिनीन, कि वो मुमिनीन नहीं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के लिए फरमाया कि अल्लाह करीम ने उन सब से जन्नत का वादा फरमाया। सरकार के सहाबा इकराम, मैंने आपसे अर्ज किया कि सरकार की ताजीम करते थे, तौकीर करते थे, सरकार पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। तो जनाब इसकी मिसाल कैसे होगी, जरा सा मिसाल भी जो है सामने आए तो जो है पता चले। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा, जब भी सरकार के सहाबियों का जिक्र आए जरूर कहें रदी अल्लाह तआला अन्हु या रदी अल्लाह तआला अन्हा। अगर मर्द हो तो रदी अल्लाह तआला अन्हु, और अगर खातून सहाबियां हों तो फिर रदी अल्लाह तआला अन्हा। इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह इनके सदक़े से हमसे राजी होगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। मोहतरम सामीन, हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका जो है जनाब महरम वाला रिश्ता है, सरकार के महारिम में से हैं, महरमात में से हैं। और सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जाते हैं, चूंकि रिश्तेदारी है, जाते हैं, थोड़ी देर सरकार जो है आराम फरमाते हैं, और गर्मी का दिन है, अल्लाह अकबर, और जोहर के बाद का या जोहर से पहले का जो है वो गर्म वक्त है। सरकार आराम फरमा रहे हैं और जो बिस्तर था वो चमड़े का बिस्तर था, और आप जानते हैं कि जनाब गर्मी हो और दोपहर का वक्त हो तो फिर पसीना निकलेगा, और चमड़े के बिस्तर पे जाहिर है कि पसीना उस पर जज्ब तो नहीं होगा, तो जाहिर है कि वहां पर जो है वो पसीना कहीं कहीं जो है वो जमा होगा। अल्लाह अकबर। तो हजरत सैयदतुना उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हैं, वो चुपके से आती हैं, और चुपके से आकर क्या करती हैं जनाब की जो है वो एक शीशी निकालती हैं, एक बोतल निकालती हैं, बोतल ऑफ ग्लास निकालती हैं, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक जमा करना शुरू करती हैं। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती हैं, दिल तो हमेशा बेदार होता है। अल्लाह अकबर। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें भी खोल ली और कहा, या उम्म सुलैम मा तस्नाईन। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, मिशकात में भी है, मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल में भी है, कई किताबों में भी है, सही हदीस है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरे आका कि ए उम्मे सुलैम, आप क्या कर रही हैं? कहती हैं, हादा अर्कुका नजअलुहु फी तीबिना व हुवा मिन अत्यब अत्तीब। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका पसीना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं, सहाबा इकराम के मुत्तबे हैं, उनके तरीके पे चलने वाले हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उनकी मोहब्बतों के सदक़े हमें इश्क़ रसूल अता फरमाए। तो जनाब क्या कहती हैं कि सरकार ये आपका पसीना है, इसको हम अपनी खुशबू में मिलाएंगे, ये तो बहुत अच्छी नौइयत का, अच्छी किस्म का जो है वो इत्र है। अल्लाह अकबर। तो चुनाचे सरकार का पसीना मुबारक जो है वो अपने इत्र में मिलाने के लिए जो है वो ले रही थी कि उसको जो है मैं इत्र में मिलाऊंगी तो इत्र की जो है वो खुशबू बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। वल्लाह जो मिल जाए, आला हज़रत फरमाते हैं ना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अल्लाह अकबर। कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मिल जाए तो फिर दुल्हन जो है ना फिर कभी उसको फूल चाहिए हो, ना कभी उसको इत्र चाहिए हो। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने जैसा इत्र जो है जनाब अल्लाह करीम ने पूरे आलम में जो है तख्लीक नहीं फरमाया। तो मोहतरम सामीन, अर्ज ये कर रहा था कि बहरहाल 3 किस्में अल्लाह करीम ने सूरह बकरा के शुरू में बयान फरमा दी हैं, और उनमें से एक मुनाफिकीन हैं, एक मुमिनीन हैं और एक काफिरीन हैं। और मुमिनीन इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो हैं जो सहाबा इकराम के तरीके पर चलने वाले हैं, और तरीक़े सहाबा जो है वो मोहब्बत रसूल का तरीक़ा है, मोहब्बत रसूल का रास्ता है। अल्लाह करीम
اس رستے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، یہ سورت البقرہ بڑی اہم سورت ہے، اور کئی احکامات، مثلا روزے کے احکامات اس میں جو ہے تفصیل سے بیان کیے گئے کہ کب جو ہے سحری ختم کرنی ہے، رات میں جو ہے جناب جبکہ روزہ نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حج کے احکامات، حج کے مناسک تفصیل جو ہے اسی صورت میں جو ہے موجود ہے، طلاق کے احکامات اور رضاعت کے احکامات، یعنی بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلانے وغیرہ کے احکامات کہ کتنی مدت تک جو ہے وہ بچوں کو دودھ ماں پلائے گی اور کب جو ہے وہ چھڑوا دے گی، یہ سب جو ہے موجود ہے۔ اسی طریقے سے رضاعت کے دوسرے احکامات بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عدت کتنی ہوگی، کتنی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بچے کو جو ہے، بچے کی ماں کو جو ہے وہ کیا نفقہ ملے گا، کیا نہیں ملے گا، یہ سب جو ہے اللہ کریم نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ محترم سامعین، وقت کم ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر جو ہے وہ پوری عرض کرنا، کیا ہم تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے اس مختصر سے وقت میں۔ کچھ آیتوں کے متعلق جو ہے اور اجمالاً ہم جو ہے اس کے احکامات آپ کے سامنے جو ہے بیان کرنے کی کچھ حد تک کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کل کے درس میں جو کچھ حصہ رہ جائے گا کچھ کل کے درس میں بھی ہم کور کریں گے۔ محترم سامعین، اسی میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والوں راعنا مت کہو، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور اے ایمان والوں تم یہ کہو کہ اے رسول رحمت ہم سب پر اپنے کرم کی، اپنے رحمت کی نظر فرمائیں، واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو، اور کافرین کے لیے، کافروں کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہودی جس طرح سے جناب اس وقت بھی ساری دنیا میں سازشیں کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے ان کا کردار بالکل ایسا ہی تھا۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے کبھی آتے تھے، سرکار کے صحابی سرکار سے عرض کرتے تھے کبھی راعینا، سرکار ہمارا خیال فرمائیے، ہماری مراعات فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، یہ عربی میں اس کا جناب معنی تھا۔ جب یہودی آتے تو اس وقت اس کلمے کو تھوڑا سا توڑ مروڑ دیتے، کچھ جو ہے اس کو جناب تبدیل کرتے، کیا کرتے؟ کہتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشر، کہتے راعینا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ سرکار کے صحابہ کہتے تھے کہ سرکار ہمارا کچھ خیال فرمائیے، یعنی خیال فرمائیے سرکار یہ معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو جو ہے دوبارہ ریپیٹ فرما دیجئے، سرکار تھوڑا سا آہستہ جو ہے اس مسئلے کو ہمارے سامنے بیان فرمائیے تاکہ ہم صحیح سے سمجھ لیں۔ وہ جو ہے جناب یہ ان کا جو ہے ان کا مقصد ہوتا تھا۔ تو انہوں نے معاذ اللہ جو ہے اس کو چینج کر کے راعینا، رائی کہتے ہیں شیپرڈ کو، چرواہے کو، تو معاذ اللہ اے ہمارے شیپرڈ، یہ ہمارے چرواہے، اس طرح سے جو ہے انہوں نے کرنا شروع کیا۔ اللہ کریم اپنے حبیب لبیب رؤوف رحیم کی گستاخی کو کبھی بھی روا نہیں رکھتا، تو چنانچہ فوراً جو ہے ان آیات کا نزول ہوا، اور یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ایسا لفظ استعمال کرنا جو ہے ممنوع ہو گیا کہ جس کو کوئی بھی جو ہے استعمال کر کے جناب جو ہے وہ سرکار کی توہین کا قصد کر سکے۔ تو چنانچہ جو ہے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والوں راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور یہ کہو کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے آقا ہم پر نظر رحمت فرمائیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک جو ہے عذاب ہے۔ اللہ کریم نے جو ہے ان کے لیے کہ جو ہے سرکار کی بارگاہ میں معاذ اللہ توہین کرتے تھے، اللہ کریم نے ان کی طرف جو ہے اشارہ فرما دیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ محترم سامعین، اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا بھی بڑا تفصیلی ذکر فرمایا ہے، بنو اسرائیل کا اور ان کی غلطیوں کا اور ان کی نافرمانیوں کا اور ان کی کٹ حجتیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا
खलीफा मुकर्रर फरमाना चाहा, और उस वक्त जो है अल्लाह करीम ने मलाइका को बताया और उन्होंने जो है जो बातें कही, तो वो सारा कुछ जो है इसी सूरत में मौजूद है। मैं अर्ज कर रहा था कि इसी सूरत में जो है हजरत इब्राहिम का भी जिक्र है और तफसीली जिक्र है। कई आयात जो हैं अल्लाह करीम ने जो है बयान फरमाई हैं। मसलन जो है अल्लाह करीम ने आयत नंबर 124 में जो है और 129 में हजरत इब्राहिम का जिक्र, उनको अल्लाह करीम ने जो है वो अपनी तरफ से इमाम बनाया, अपना नायब बनाया, उसका जिक्र। और फिर जो है हजरत इब्राहिम ने मक्का मुकर्रमा के लिए जो दुआएं की वो भी जो है उसका भी जिक्र है। तो ये उनकी दुआओं का ही असर है कि जनाब आज तक आप देखिए ना कि जनाब मक्के शरीफ में फल पैदा नहीं होते, लेकिन कौन सा ऐसा फल नहीं है दुनिया का कि जो मक्के शरीफ में जो है वो अवेलेबल ना हो। तो ये हजरत सैयदना इब्राहिम जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, ये उनका जो है फैजान है और उनकी जो है वो बरकतें हैं। मोहतरम सामीन, इसी तरीके से हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो काबे शरीफ की तामीर कर रहे थे, उसका भी जिक्र जो है इसी सूरत में जो है वो मौजूद है। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो है उन्होंने दुआ की थी कि सरकार जो है अल्लाह करीम जो है वो ऐसा नबी जो है अता फरमाए जो कि बड़ी शान वाला हो। तो उन्होंने अर्ज की थी कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, कि ए हमारे रब इनमें एक ऐसा रसूल भेज दे कि जो उन्हीं में से हो और उन पर तेरी आयतें पढ़े और उनको किताब की और दानाई की, विजडम की जो है सिखाए। वो युज़क्कीहिम, और उनको सुथरा करे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू अजीज भी है, तेरे ही कंट्रोल में हर चीजें हैं, तू ही कुव्वत वाला है और तू ही दानाई वाला है। तो मोहतरम सामीन, ये जो है हजरत सैयदना इब्राहिम की दुआ थी। इसी तरीके से जो है सफ़ा मरवा का जो है जिक्र आया, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, कि बेशक सफ़ा और मरवा जो है वो अल्लाह की निशानियों में से हैं। और फिर इसी तरीके से फरमाया वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि हजरत इब्राहिम के खड़े होने की जगह को जाए इबादत बना दो, इबादत की जगह बना दो। ये क्यों है जनाब? हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं, जिस पत्थर पे खड़े होकर उन्होंने तामीर काबा फरमाई, अल्लाह करीम ने उसको जो है इतनी इज्जत अता फरमाई कि लोगों से कहा, कयामत तक के लोगों से कहा कि इसको जो है अपने इबादत की जगह बना लो। और उनकी अहलिया सैयदतुना हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है उन्होंने चक्कर जो है वो काटे। अल्लाह करीम ने उन पहाड़ों को जो है वो इज्जत अता फरमा दी और हर जो है हाजी के लिए लाजिम हो गया, वाजिब हो गया कि वो सही करे। इसी तरीके से जनाब ये उम्रे के अरकान में से हो गया कि जो है हाजी जो है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है वो सही करे। अल्लाह अकबर। तो चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे, यहां से मालूम हो इन दोनों आयतों से जो कि इसी सूरतुल बकरा में है, कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे जहां पर चले जाएं, जहां पर खड़े हो जाएं, जहां पर जो है आना जाना कर लें, अल्लाह तबारक व तआला उनको शायर अल्लाह करार देता है, अपनी निशानियों में से करार देता है। और फरमाता है एक और जगह, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह के शायर की, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, तो ये ताज़ीम जो है ये लोगों के दिलों की परहेजगारी में से है। तो चुनाचे जनाब हम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुकात की ताज़ीम करते हैं, गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तबर्रुकात की ताज़ीम करते हैं, नबियों के वलियों की जो है तबर्रुकात की ताज़ीम करते हैं। तो ये सब जो है जनाब इसका सबक जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद से जो है हमको अता फरमाया गया है। मोहतरम सामीन, अब वक्त जो है चंद मिनटों में यहाँ पर भी ओल्ड मैनचेस्टर में भी जो है जनाब इफ्तार का होने वाला है।
تو اب ہم دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید عرض کریں گے. قرآن کتنا بھی آپ جو ہے اس کے معنی بیان کریں، سمجھیں، پڑھیں، پڑھائیں، پھر بھی جو ہے تشنگی باقی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی فضل سے، اپنے کرم سے قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے. صاحب قرآن، صاحب جود و کرم، وادی بطحا کے سردار، بلکہ سارے عالم کے سردار، سید الخلق والخلیقہ، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے، تمام عالم کو عطا فرمائے. اہل سنت والجماعت کو یہ خاص برکتیں نصیب فرمائے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بیدار نصیب فرمائے. سرکار کے صدقے اللہ کریم ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اس رمضان کو اللہ کریم ہمیں عبادت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کریم ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ٹیلی ویژن سے، ہمیں فلموں سے، ہمیں ڈراموں سے، ہمیں معصیت سے، ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت سے محفوظ فرمائے. ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں، ہمارے دین میں، ہماری دنیا میں، ہماری آخرت میں، اللہ کریم ہمارے بچوں میں، ہم سب کے ایمان میں برکتیں عطا فرمائے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشاں کے واسطے. کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائیں رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. اللہ کریم تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے. ہمارے لسنرز جو کہ اولڈم سے، نوٹنگم سے اور کراچی سے، پاکستان سے سن رہے ہیں، اللہ کریم سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.